Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel, Shashi Education Foundation Care. Hi, my name is Akshay Dave. Today, I tell you about the story of a struggling engineer. Uh, कोई टुडे स्टॉप की ऑसिन हिंदी ओके। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगलिंग इंजीनियर। स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगलिंग इंजीनियर। ये स्टोरी मेरे से रिलेटेड है, वैसे कई लोगों से रिलेटेड भी हो सकती है। आज का टॉपिक मैं इसलिए हिंदी में बताऊँ ताकि हर एक को समझ में आए, जो कि हर एक इंजीनियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया साउथ के इंजीनियर्स को इंग्लिश आती है तो वो नहीं समझ सकते, तो वो भी समझ सकते हैं जो जिनको हिंदी आती है। बट ये मैं आज का टॉपिक हिंदी में इसलिए बिकॉज इट्स नेसेसरी। और कुछ दिनों से मेरी हेल्थ डाउन थी, इसलिए मैं कुछ दिनों से मेरी हेल्थ डाउन थी, इसलिए मैं कोई यूट्यूब वीडियो डाल भी नहीं रहा था। देर अबाउट द 2 or 3 months my health is so that I can't down, so that I can't make any YouTube video. So today's topic about the story first is related to me. Since my childhood I started, यानी कि मैं अपने बचपन से शुरू कर रहा हूँ। My mom dad मीन्स मेरे पेरेंट्स, माता पिता, उन लोगों ने दो दो बच्चे पैदा किए। 2 kids उन्होंने, दे बॉर्न 2 kids। वन इज माई सिस्टर, एक मैं, मेरी दीदी, एल्डर सिस्टर, एक मेरी दीदी और एक मैं। वन इज माई एल्डर सिस्टर, अनदर वन इज मी, यानी कि मैं। ओके, सो व्हाट हैपन कि क्या हुआ, माई एल्डर सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, हम दोनों से किसी एक को ही अच्छा एजुकेशन दे सकते थे, मतलब कि पढ़ा सकते थे। हम दोनों से किसी एक, यानी कि मिस्टर से इन बिटवीन अस टू दे गिव ओनली गुड एजुकेशन टू ओनली अस, दे चूज माई एल्डर सिस्टर, मेरी दीदी को। देन व्हाट हैपन, उन्होंने उनको 10th में भी कोचिंग दिलवाया। मेरी दीदी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी 12th तक। मिस्टर से माई सिस्टर लर्न इन अ प्राइवेट स्कूल अप टिल 12th तक। उन्होंने उनको प्राइवेट कोचिंग भी दिलवाया MBBS के लिए। फॉर द MBBS दे गिव ऑल्सो प्राइवेट कोचिंग सिंस 10th to 12th, 10th से लेके 12th तक का। तो वो हम दोनों से किसी एक को ही अच्छा एजुकेशन दे सकते थे। ओके, तो they got some two reasons as that they get the good education to only once, so they choose my sister। तो इसलिए उन्होंने मेरे से सिस्टर को चूज किया, एल्डर सिस्टर को। अब रही मेरी बात, अबाउट मी, व्हाट हैपन, I started my career after the 12th. I already tell you one thing. In 11th standard, I mean government school, or on that time government school, there in Delhi there is not much more good education. So in 9th and 10th I had to survive related to the education, यानी कि मुझे 9वीं 10वीं में एजुकेशन से रिलेटेड सर्वाइव करना था कि मेरे को साइंस मिल सके। देन मैं आगे जाके मीन्स to take in the science, then for the I had to go for the BSc, otherwise engineering. But what would happen, क्या हुआ, मतलब मगर क्या हुआ कि इज दिस, मेरा 10th का परसेंटेज नहीं था, and 10th I didn't have a good percentage। और उस टाइम, on that time, since in 9th and 10th, they didn't have any private coaching like
for the IIT preparation for Geo for the for the 10th for getting the good percentage 10th. So what would happen in 10th? I pass. Then after, but in between this, I tell you one thing. What would happen in first time in 10th? Because took 2 years pass attendance to what because of what first time in 10th I got the nervous breakdown. Because of nervous breakdown, मेरे को nervous breakdown था because of during the mid of 10th there's a severe nervous breakdown, not a simple severe nervous breakdown. What would happen? I can't analyze anything easily. I can't read feed up inside my memory anything easily because मिस्टर से मैं कोई भी चीज याद नहीं रख पाता था, नहीं कोई चीज समझ पाता था because this nervous breakdown 10th डॉक्टर से कि इनको आप प्रेशर मत दीजिए, so it's okay. Then in second time in 10th I pass. Try to recover. Then second time 10th I passed. Then I didn't got the science in the commerce. I got the arts. And then I passed my 11th 12th through arts. I says to my parents, I didn't need to be a like a BA type person. I need to be the artist like Michael Jackson, all this, because I'm interested in singing and dancing on that time. But my parents agreed. We didn't have much more money, so I told him, then it's okay. I need to do engineering. So on the basis of 10th, यानी कि मैं 10th के बेसिस पे I give a polytechnic entrance. And in this polytechnic entrance in all over India, I got 2300 rank in all over India. Nearly 23 or there was a 2000, I can't remember, all over India. But here what would happen? In my family, मतलब कि मेरी 23,000 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया में, तो मेरी फैमिली एक भाई साहब है इन माय फैमिली, ही इज सिटिंग इन बॉम्बे, ही इज कॉल्ड माय मामा भैया. आई didn't took his name and I didn't want to remember the past. He says to my parents कि इन्होंने मेरे माता पिता को कहा. He didn't know the meaning of he didn't know the mathematics M, physics P, or the chemistry C. So how could he do the engineering? So what would happen? My parents उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि इसको मैथ्स का एम नहीं पता, फिजिक्स का पी नहीं पता, केमिस्ट्री सी नहीं पता, ये इंजीनियरिंग क्या करेगा. तो फिर उस टाइम मेरे को कोई बात, इट्स ओके फाइन. तो मैंने मम्मी को मदर फादर को बोला कि ठीक है. मैं टोल्ड टू माय मदर फादर कि इज दिस द कि बिकॉज क्या हुआ था कि जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग सीट्स बढ़ जाती, बिकॉज कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस द सीट्स आर गोना फिल्ड, because according conferences the seats are gonna filled. So क्या हुआ कि because 23 या 2009 था, तो उस मैं टाइम पे नहीं गया. मेरे पेरेंट्स उस टाइम क्योंकि सब कुछ डिसीजन लेते थे मेरा, तो उस टाइम मैं टाइम पे बिकॉज ऑन दैट टाइम मैं पेरेंट्स took every decision related to me. तो मैं उस टाइम on that time I can't go on
conference related to the engineering colleges on time. So what would happen? The सीट्स गोना फिल मतलब कि सीट्स तो क्या हुआ सीट्स भर गई. तो उसके बाद देन आफ्टर आई टोल्ड टू माई मदर फादर, मैं कुछ ही नहीं जानता, आई डेंट नो एनीथिंग, तो आप मुझे रॉकस्टार के लिए प्रिपेयर करो हाईली पेड फीस देके, या मुझे आप साइंटिस्ट बनाओ, बिकॉज आई एम admire from the whole from the whole world the scientists. Okay, so I give two options to my mother father, whether if you whether if you so I told to my mother father whether if you prepare me for a rock star, otherwise I need to be a scientist. I gave them the two options according to my scenario. So what would happen? My parents says, okay, we don't have much more money, so we can't be you that rock star like that Michael Jackson or other any kind of big star. So you need to be a scientist, it's okay. तो उस टाइम क्या हुआ, मैंने दिल्ली में ITI में जे लोड में एडमिशन ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में. On that time I took admission at ITI in electronics on that time. Okay, then in between this ITI my class mentor सोनिया मान, यानी कि इन ITI के मिड में जो मेरी क्लास मेंटर थी सोनिया मान है, मतलब कि a great lady she is. Her qualification is BSc Mathematics plus engineering in ET through MI. BSc Mathematics plus ET through MI. She says to me, जब उन्होंने इस सब के बारे में जाना तो उन्होंने मेरे बारे में जाना कि अक्षय आपने उधर ज्वाइन क्यों नहीं किया पॉलिटेक्निक, जब आपका रैंक इतना अच्छा था 23 ईयर था ऑल ओवर इंडिया. देन मैंने उनको सारी कंडीशन बताई कि किसी कारण मेरे पेरेंट्स से मना कर दे, सो दैट्स आई कांट ज्वाइन इन द डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑन दैट टाइम. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, शी told me one thing related to by seeing my scenario, scenario को देख के एक चीज़ बताई, IET इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स. उन्होंने बोला कि अच्छा वहाँ पे जाकर एडमिशन है, वहाँ से पढ़ाई करो, बट यहाँ से IIT कंप्लीट होने के बाद क्या पता मैथ्स, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स क्या होगा आपका कट जाएगा क्लियरिंग आफ्टर क्लियरिंग ITI. ओके, तो मैं गया वहाँ पे जाने के बाद जब मैं गया तो सिलेबस चेंज हो गया. सिलेबस चेंज होने के कारण के वहाँ पे मैथ्स कटा नहीं. तो मैंने 2011 में वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया IET में. इन 2000 आई टुक एडमिशन इन IETE. एंड साथ में मैं एक कंपनी में जॉब करता था, जो कि बहुत ब्रिलियंट कंपनी है अभी भी. उधर भी मेरे को 2 मेंटर्स मिले वहाँ पे मैट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में. सो मैंने उधर नियरली अबाउट 2.5 years जॉब किया. ये बहुत ही ब्रिलियंट कंपनी. उधर के डायरेक्टर मैं वहाँ पे तो 2 मेंटर्स थे.
एक मैट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्टर अजीत श्रीवास्तव he is also Ajit Shrivastava is also an electrical engineer, but he's an electrical engineer, but from the same MI pass out. IIT एक चार्टेड बॉडी है आपका जो कि MI के साथ ही आता है कि ऑल ओवर इंडिया आपका नील अबाउट द 15 या 16 चार्टेड बॉडीज हैं जो कि आपका IIT के इक्विवेलेंट सिलेबस चलाती है। अब ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जो IIT जो है उससे पहले का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उससे पहले अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में ओपन किए थे। एक IIT खड़गपुर सेकेंड इज MIE situated in 1953. Remember this thing. MI आपका situated 1953 से पहले, सॉरी आई थिंक 1953, यस सर, कि बिफोर 1953। तो अंग्रेजों ने ये 2 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, जो यानी कि आपका IIT खड़गपुर में सिलेबस चलता था वो आपका MI में चलता था, चाहे इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच हो। आज भी ऐसा ही है। आज ही आज़ादी के इतने साल बाद कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो क्या अब MI जब देश आज़ाद हुआ, इंडिया को कॉलेज की नीड होने लगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हर कोई चाहता था कि वो जो कि पेट्रियोटिक पर्सन होते हैं ये चाहते थे कि भैया हम भी अपने फील्ड में इंजीनियरिंग करें और देश को कुछ भला करें। तो क्या किया उस टाइम MI एक तो चार्टेड बॉडी था और दूसरा IIT खड़गपुर था, है। तो ऑन दैट टाइम जैसे ही देश आज़ाद हुआ आपका, तो उस टाइम MI की कुछ और किस अंडर सिनेरियो में IET खुला, इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स खुला, IME खुला, इंस्टीट्यूट मैकेनिकल इंजीनियरिंग खुला, और भी बहुत सारी मतलब कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया खुला, बहुत सारी ब्रांचेस खुली। तो लेकिन इन सब का सिनेरियो एक ही था। रिमेंबर दिस थिंग, पर पेपर का जो आपका पासिंग मार्क्स होता है पर सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 100, ये इनका सिनेरियो था। और IITs में भी ये सिनेरियो चलता है, आज भी कोई भी इंडिया के IITs में भी ये सिनेरियो चलता है। सो क्या हुआ, मैंने IIT में एडमिशन ले लिया, साथ साथ मैं मैट्रिक्स में जॉब करता था। तो मैट्रिक्स मेरे 2 मेंटर रहे, अभी भी हैं वो लाइफ में, अभी भी लाइफ वो दोनों पर्सन्स हैं। एक तो मैट्रिक्स डायरेक्टर अजीत श्रीवास्तव, सेकंड इज राकेश यादव। हर कोई आजकल सोचता है कि बहुत छोटी मोटी हस्ती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मैं एक बात बता दूं, राकेश यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ध्यान रखना। आज मैं राकेश सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक रीज़न उनका ये है क्योंकि वो कोई भी स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिकली टीच करने के लिए हायर करते थे तो वो स्टूडेंट को हाथ पकड़ के सिखाते हैं। आज के ज़माने में बाप भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो जब भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते थे, अभी शायद पढ़ाते हैं, जब वह कोई यंग इंजीनियर किसी कंपनी में आता है उसको प्रैक्टिकली तो हाथ पकड़ के सिखाते थे,
ये राकेश यादव की स्पेशलाइजेशन है। अजीत श्रीवास्तव का खुद का ब्रांड है मैट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि, और एक बात, मैट्रिक्स भी कोई मामूली कंपनी नहीं है। आपको एक बात बता दूं क्यों। मैट्रिक्स से कोई मामूली कंपनी नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं क्यों। बिकॉज मैट्रिक्स को जो उस जमाने में यूपीएससी से जाते थे, वो आपका मिसाइल के लॉन्च पैड्स में लगते थे, प्लस रेलवेज में इनके एफसीबीसी चार्जेस जाते थे, रेलवेज में एफसीबीसी चार्जेस जाते थे, फ्लोट कम बूस्ट चार्जर। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लस मिसाइल्स इनके यूपीएस लॉन्चिंग पैड से लगते हैं अभी भी, ये भी अभी भी काम है, बट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा बंद हो गया है। देन प्लस जो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इस कंपनी का यूपीएस लगे हुए हैं। हॉट स्टैंड टेक्नोलॉजी एंड जो आपने ऑन का SMS को AC ऑनर जो टेक्नोलॉजी देखा है, वो सारा मैट्रिक्स के थ्रू इन्वेंट किया हुआ है बाय विद द हेल्प ऑफ राकेश यादव, अजीत श्रीवास्तव। रिमेंबर दिस थिंग। ये बात ट्रूथ है, किसी को पता नहीं होगी। और कई कंपनियों में भी ऐसा होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग मैट्रिक्स को कॉपी कर रहे हैं, जो कि राकेश यादव जी का डिजाइन है PCBs में, और यूपीएस पूरे यूपीएस सिस्टम तक को उन्होंने कॉपी कर रखा है, यूपीएस के इंटरनल मैप को, इंटरनल ब्लूप्रिंट को, जो कि राकेश यादव जी ने मैट्रिक्स के अंदर रहकर डिजाइन किया था। एंड अब बात आती है एजुकेशन की, जो मैं 2011 में ज्वाइन किया IIT, ठीक है। दिस इज स्टोरी वाज टेलिंग आई टेल यू, जो ये मेरे से रिलेटेड स्टोरी है। तो मैंने IIT ज्वाइन किया, तो मेरी सिस्टर उस टाइम MCA कर रही थी, उनका MCA आई थिंक कंप्लीट होने जा रहा था, उन्होंने BSc इन फिजिक्स ऑनर्स प्लस MCA किया है, तो उनका उस टाइम MCA कंप्लीट होने जा रहा था। एल्डर सिस्टर का MCA इज गोना कंप्लीट ऑन दैट टाइम। तो मैंने 2011 में IIT ज्वाइन किया। देन मैंने IIT ज्वाइन करने का किया था कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया, तो मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम भरा 2011 दिसंबर में एग्जाम भरा, बट लेकिन जो मेरे पास मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए, फ्रेंकली बता, मेरे पास उस टाइम इतना मनी नहीं था कि मैं बुक्स भी परचेज कर सकूं पर्टिकुलर राइटर की जो IIT रिकमेंड करता था, और प्लस मेरे पास इतना भी मनी नहीं था कि मैं क्लासेस अटेंड कर सकूं। ये बात मैं अपने उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं मैट्रिक्स में जॉब करता था, कि मैट्रिक्स से भी इतना सैलरी तो नहीं मिलता था, मुझे अपना घर भी चलाया था, अपने पेरेंट्स को भी देखना था, तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बुक्स खरीद सकूं, नहीं क्लासेस ले सकूं। तो मैं संडेज टू संडेज ट्राई करता था कि भैया किससे कुछ हेल्प मिल जाए, फ्रेंड से या सीनियर से। तो कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि भैया हेल्प मिल सके। तो व्हाट वुड हैपन, ऐसी लाइफ चलती रही। तो मैंने बीच में एग्जाम्स भरना बंद कर दिए, यानी कि मैंने क्या कहते हैं आपका पेपर भरना बंद कर दिए अपने एजुकेशन में। तो मैंने थोड़ा हॉल्ट ले लिया। हॉल्ट लेने के बाद देन आफ्टर हॉल्ट लेने के बाद तो मैंने मैट्रिक्स छोड़ के जब मैंने माइक्रोटेक ज्वाइन किया, माइक्रोटेक में आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं मैट्रिक्स में बिल्कुल क्या कहते हैं एक प्रोडक्शन इंजीनियर का स्नेह तो बिल्कुल ही लगता। मैं माइक्रोटेक में मैं लोगों के घरों में बैटरीज का वो करता था, मेंटेनेंस करता था थ्रू वाटरिंग। दैट्स जो कि मैं क्या कहूँ कि एक हर इंसान को हर एक कंडीशन देखनी पड़ती है अपनी लाइफ में, हर एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो मैंने जो मेरा मैट्रिक्स में स्नेह था बिल्कुल माइक्रोटेक में बिल्कुल अलग कर दिया गया। लोग घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं उनकी बैटरीज का मेंटेनेंस करते थे,
थ्रू वाटरिंग, जो कि यार मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिल्कुल ही अलग था कि यार एक तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सीख के आया होता सब कुछ, और मेरे को यहाँ पे ये करना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मैंने माइक्रोटेक ज्वाइन किया। माइक्रोटेक ज्वाइन किया, मैंने ये काम किया क्योंकि वहाँ पे ये था कि मैट्रिक्स से सैलरी ज़्यादा था, क्योंकि मैट्रिक्स में मेरे को 8,000 मिल रहा, तो माइक्रोटेक में 2,000 या 10,000 मिल रही। उस टाइम इतना स्ट्रगल किया था मैंने, क्योंकि आज भी वो चीज़ सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिफोर दैट जब मैं आईटी करता था, आईटी करता था, मैं घर के नियर एक टेलीविजन रिपेयरिंग शॉप थी। टेलीविजन रिपेयरिंग शॉप थी, लाइक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एंट्रेंस होते हैं, जो एंटरटेनमेंट एंट्रेंस होते हैं, उनको रिपेयर करने की शॉप थी। तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया करता था, जब मैं आईटीआई के साथ साथ इवनिंग में वहाँ पे जाके सीखने के लिए, और सीखने का मेरे को उल्टा मनी देना पड़ता था। लर्निंग का मुझे उल्टा मनी देना पड़ता था, मनी पे करना पड़ता था। मैं उसका फ्री में काम करता था उस पर्सन का, ताकि मुझसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे था कि सीखने, अमिताभ बच्चन जी का भी कहना कि भैया सीखना बंद तो जीतना बंद। ये मेरा भी सिनेरियो है कि भैया अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। लर्निंग के लिए मैं उसको मनी पे करना पड़ता, तो मैं उसको मंथली 500 रुपीज कहीं ना कहीं से छोटे मोटे काम करके पे करता था। फिर मैं जब 2 इयर्स बीते, फिर मैंने मैट्रिक्स ज्वाइन किया। मैट्रिक्स ज्वाइन करने का मैंने वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब किया, जहाँ पे मेरा अच्छा अपग्रेडेशन हुआ 4,000 से 8,000 तक का, 100% तक का। तो क्योंकि मैंने मैट्रिक्स 4,000 में मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैं जब मैट्रिक्स में मैं 2.5 या 2.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस पूरा हुआ है, तो मैंने इन द मिनट एग्जाम्स नहीं भरता था। तो 2.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस पूरा, तो मैंने ज्वाइन किया माइक्रोटेक, जब मैं बैटरी मेंटेनेंस का काम करता। बट लेकिन मैं आगे एक बात बता दूं, मेरे फ्रेंड्स के पास नोट्स थे, उन्होंने बोला भाई अक्षय तू फोटो कॉपी करा ले, उनसे पढ़ ले। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलते, मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते, क्योंकि उस टाइम बस इतना मनी नहीं था कि अपने फ्रेंड्स के नोट्स का फोटो कॉपी करा के पढ़ सकूं। ये बात फैक्ट है, ट्रुथ है। तो मैंने वो फेज देखा, क्योंकि मैं जानते हो, इसलिए मैं हर एक बीएससी होल्डर, हर एक 12th गेट बच्चे को या फिर 8-9 के बच्चे को एंकरेज करते, मेरी आदत है। तो क्या हुआ कि मैंने जब वहाँ पे जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर मेरे फ्रेंड्स क्या होता था कि जैसे कि अब संडे फ्री होते थे, तब यूनिवर्सिटी में जाया करते थे कि भैया यहाँ यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। तो वहाँ पे फ्रेंड्स मीट, फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई अक्षय तू मेन नोट से फोटो कॉपी कर ले और फिर फोटो कॉपी करा के दे दियो। तो मेरे पास इतना मनी नहीं था कि मैं नोट्स का फोटो कॉपी करा सकूँ। वह एग्जाम, एक फ्रेंड है सुबोध, वो रिलायंस कम्युनिकेशन काम करता है, सुबोध शेरावत, डॉक्टर की औलाद है। ये टोल्ड मी कि भाई अक्षय की इसके इनके नोट्स हैं, तो कि तू कॉपी करा के दे दिया कर। बट लेकिन उस टाइम में आपको तो मेरे पास इतना मनी नहीं था कि मैं नोट से कॉपी करा सकूं, फोटो कॉपी करा सकूं। इट्स फैक्ट, मैं पूरी पूरी सच्चाई होता है अपने बारे में आज, क्योंकि कैसे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं हर एक को पता चले। तो क्या कि मैंने यहाँ पे फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरे पास इतना मनी नहीं है, कि मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर रहे हैं कि जैसे कि क्योंकि नियरली अबाउट 2013 और 14 थे, मेरा हर एक डिसीजन मेरे पेरेंट्स लेते थे। तो क्या हुआ कि इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स मना कर दे कि वी डिडंट हैव मनी की टू स्पेंड, और पहले आईटीआई के लिए स्पेंड के लिए तूने 2 इयर्स वेस्ट किया थे, हमारे पास इतना मनी नहीं कि तेरे लिए अब हम तुम्हारे लिए हम स्पेंड करें कि नोट्स बुक्स वगैरह। ठीक है, फन कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ,
जैसे जैसे जर्नी पास होता गया, मैंने मैट्रिक माइक्रोटेक में जॉब किया, फिर माइक्रोटेक के बाद मैंने पी के मॉर्गन और फिलिप्स की बायोमेडिकल की जो फिलिप्स की कंपनी, मैंने उसमें जॉब किया। वहाँ पे मैंने जॉब करने के बाद मुझे एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, जो मैं उनका नाम लेना चाहूँ, मेरे सीनियर भी, क्योंकि उनको अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के बाहर, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या, मैंने बोला कि सर मुझे हेल्प चाहिए कि क्योंकि मुझे अपना इंजीनियरिंग क्लियर करना है, मेरे पास मनी नहीं है कि मैं कोई बुक लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा सकूँ या फिर कोई बुक परचेज कर सकूँ। तो उन्होंने ओके बोला, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। मेरा 2 साल 1 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाले, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ठीक है। दे इन द मिड मैंने कहा कि सर मुझे पढ़ाने के लिए भी कोई पर्सन चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बहुत ही ग्रेट पर्सन है और बहुत ही काबिल इंजीनियर है मेरे फ्रेंड। तो तो मैंने बोला ठीक है सर, क्योंकि वो सीनियर है तो मैं उनको सर ही कहूँगा। तो अकेले मैं उनको भाई भैया कहते हूँ, वैसे सबसे सर ही कहता हूँ। तो क्या हुआ, जब मैं 2015 में फिलिप्स एलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब वहाँ पे भी मैंने 1.5 साल के 1.5 ईयर्स किया। फिर मैंने उसके बाद एक कंपनी ज्वाइन की, वो 420 कंपनी है एक। मैं उस कंपनी का नाम लेना चाहूंगा। यहाँ से मेरी जो 2016 में से मेरी पूरी जर्नी चेंज हुई है, एक पर्सन की वजह से उनका नाम भी लूंगा जो मेरी हेल्प की है। तो फिर मैंने एक 420 कंपनी ज्वाइन की। आई ज्वाइन 420 कंपनी। 420 में से आप लोग समझ जाओ कि भैया 420 किसे कहते हैं। 2016 मैंने एक 420 कंपनी ज्वाइन की, मोबाइल कंपनी। उस मोबाइल कंपनी का नियरली अबाउट 2 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कराया। उनके कीपैड मोबाइल्स पे। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैंने उनका ट्रस्ट जीत लिया था, तो मैं सोचा कि मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है हम आपका स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। तो मैंने उनसे 2 डेज मांग के उस टेक्नोलॉजी का ब्लू प्रिंट दिया के, जो कि उस टेक्नोलॉजी के पीछे मेरा, अगर मैं बात करूं, 2008 से लेके 2015 तक का हार्ड वर्किंग था। 2015 तक का हार्ड वर्किंग था मेरा। 2015 का 2016 मार्च तक का मतलब हार्ड वर्किंग था मेरा उस प्रोडक्ट के पीछे। वो प्रोडक्ट ऐसा था आपका, अभी भी कि बहुत रेयर लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता है। वो प्रोडक्ट आपका, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल है, वह एज अ टेम्पर्ड की तरह काम करता। ठीक है, नॉर्मल टेम्पर्ड की तरह काम करता, बट लेकिन क्या था, थ्रू फेदर टच, ये फेदर टच है आपका। ठीक है, ये आपका फेदर टच है। अगर आप कुछ भी क्लिक करें तो आपको आ जाएगा आराम से। ये दिस को तो फेदर टच, आप कोई भी ऐप क्लिक करेंगे वो फेदर टच होता है। आप चाहे जो भी करें, इसे फेदर टच कहते हैं। और फेदर टच का जो इनोवेशन हुआ था आपका सन में हुआ था, जो कि बहुत ही काबिल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट। उन्होंने किया था सन में। जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने सन में नीले बोर्ड 1960 और 70s में, 60 या 70s के डिकेड्स में सन ने में इन सन जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने, जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने फेदर टच का इनोवेशन किया। उनकी उनकी टीम ने, एंडीज टीम, फेदर टच का इनोवेशन किया फर्स्ट टाइम ऑन सन। तो मैंने जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट की हिस्ट्री पढ़ी,
गूगल पे सर्च किया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं मैं उनकी इनोवेशन का क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम एक मोबाइल कंपनी में वर्क कर रहा था। और उससे पहले मैं सोचा था कि भैया, क्योंकि मैं देखता था कि लोगों के मोबाइल्स की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बहुत जल्दी ड्रेन। इवन एप्पल का भी उस टाइम जो बैटरी आता है बहुत जल्दी ड्रेन होता था। तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला कि भैया, कोई इंसान को, किसी भी इंसान को अपना मोबाइल चार्ज करने का कभी जरूरत ही ना पड़े। तो मैंने एज, एज, एक ऐसा टेम्पर्ड बनाया, प्रैक्टिकली नहीं बनाया था, थियोरेटिकली मैंने सोचा कि भैया फिजिक्स के मैथमेटिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग और पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि आप अपने मोबाइल पे अगर टच करोगे, अपने मोबाइल पे अगर कोई भी एंड्रॉयड यू फर्दर टच का कोई भी मोबाइल है, वेदर इफ इट इज एंड्रॉयड आईओएस और विंडोज, उससे आप टच करोगे, आपका मोबाइल आपके फिंगर से चार्ज लेकर उसको अपने आप और ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा। लाइक दैट ये मेरे एक इनोवेशन था जो किसी को मेरे को बहुत ही इनिशियल प्रोडक्ट था। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब बात ही ऐसी, तो मैंने उनको ब्लूप्रिंट दे दिया कि भैया ये है वो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को अगर R&D बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पार्ट आप अगर 10% भी दें काफ़ी, और मुझे किसी IIT से डॉक्टरेट का डिग्री मिल जाए कि इनोवेशन की मैंने किया है। सिंपल सी बात, यानी कि उस इनोवेशन से मैं कई प्रॉफिट ले सकता था। एक तो अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकता था, कंडीशन ठीक ठीक कर सकता था। सेकंड, मुझे किसी IIT से अपने फील्ड में डॉक्टरेट का डिग्री मिल जाए, PhD का डिग्री मिल जाता, क्योंकि वो इनोवेशन एक यूनिक था। किसी भी आप बात कर लो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में कि दैट वाज ए यूनिक इनोवेशन, कि आपको मोबाइल चार्ज करने की जरूरत है, आपका फेदर टच से ही आपके फिंगर से वो चार्ज लेगा और चार्ज होएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनफैक्ट इन लोगों ने धोखा किया। इन लोगों ने क्या किया, उस 420 कंपनी की मैं बात बता रहा हूँ। उस 420 कंपनी ने क्या किया, दूसरी 420 कंपनी से जो कि डूबी हुई है, उसका CEO हायर किया इस 420 कंपनी ने। ये अंदर की बात है, मुझे नहीं पता था कि उस 420 दूसरी 420 कंपनी से CEO हायर किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस कंपनी में 420 कंपनी मुझे चूना लगाया, वो कंपनी खुद गुटखा बनाती है, गुटखा बनाती है। और उसने ही उस मोबाइल कंपनी को खोला था और चाइना से उस चाइना ने जाकर उस मोबाइल कंपनी से टाइप किया था। अब सोचे भैया, जो गुटखा कंपनी कंपनी गुटखा बनाती है, वो तो भैया लालच छापता ही कि से लालच सेंस। मैं ये नहीं कह सकता भैया कि हर एक लाला एक जैसे होते हैं। जो कि एजुकेटेड लालास होते हैं, वो बिल्डर टाइप के पर्सन जो होते हैं, जो कि सिर्फ नॉलेज तो होता नहीं है, बस उनको पैसे दिखाई भी कैसे किसी को धोखाधड़ी देकर पैसे बनाया जाए। तो उस प्रोडक्ट का अगर आप हिसाब लगाओ तो कोई भी कम्युनिस्ट प्रोडक्ट आज के समय में निकाल कि अबाउट उस कंपनी को ईयरली टर्नओवर 2 लाख करोड़ का होगा, करोड़ रुपीस का होगा, अगर वो एक बिजनेस सिनेरियो बिल गेट्स का यूज करे तो। बिजनेस सिनेरियो बिल गेट्स का यूज करे तो आज के ज़माने का मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ, वो 2 लाख करोड़ से कोई पहुंच सकता है अगर उस प्रोडक्ट को कोई भी प्रैक्टिकली कंपनी बनाए और वो बिल गेट्स का स्नेह यूज़ करे। तो आज के ज़माने के उस कंपनी को 2 लाख करोड़ से रुपीज़ या उससे ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है।
क्योंकि अभी आज के ज़माने में कई स्मार्टफोन कंपनीज आ गई, अबाउट द 30 or 40 स्मार्टफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अब जैसे कि इसका 420 कंपनी ने मेरे प्रोडक्ट को दूसरी 420 की कंपनी को बेचा, वो कैसे? इस 420 कंपनी के सीईओ को हायर करके। और एक और बात मैं बता दें, जब आप टेक्निकल में बात करें, आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी सीईओ हायर कर लें, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, आपका बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं है कि भैया आप कोई कंपनी टेक्निकल कंपनी हैंडल कर सको, तो मैं बता रहा हूँ डूबना आपका 100% श्योर है। और जो उन्हें सीईओ है कि वो सीईओ का एजुकेशन भी मैं नेट पर सर्च किया, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड का एजुकेशन नहीं है, ओनली बीबीए और एमबीए। और ये सीईओ पहले इकाई का सीईओ था, उसके बाद उस 420 कंपनी का सीईओ बना, फिर उस 420 कंपनी से जिस 420 कंपनी से चूना लगाया था, उस 420 कंपनी ने उसको सीईओ हायर किया। अब यह क्योंकि अकाई भी डूब गई, आप लोग सोचो भैया, अकाई का टेलीविजन कंपनी थी जो कि आज के ज़माने में जिसका नाम निशान तक नहीं है और डूब गई। अभी अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड है, फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं हो, और आपने बी को उसके बाद या फिर एमबीए किया है, तो उस एमबीए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट समझने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज लेने के लिए आपको कम से कम क्या कहते हैं वो होना चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए, तभी आप चला सकते हो कंपनी। अभी फॉर एग्जांपल हमारे एक सर हैं, आईआईटी पीएचडी होल्डर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उनका आई थिंक पीएचडी है। उस कंपनी का प्रोडक्ट कई कंपनी से जाते हैं, इवन फोर्ड में जाता है, मित्सुबिशी में जाता है, कई कंपनी में जाता है, और उस कंपनी की खुद की वो है, क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर लैब भी है। अभी रिसेंटली उस कंपनी को मोटरोला का वो मिला है, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कि इंडिया में जो मोटरोला चल रही है नीले अबाउट द 6 or 8 मंथ से, वो एक टेक्निकल पर्सन के हाथ में है, जो कि एक आईआईटी से पीएचडी होल्डर है स्टेट फिजिक्स में, एंड प्लस उनके अंदर कई एम्प्लॉइज, कई मतलब कि आप कह लो कई इंजीनियर्स वर्क करते हैं उस कंपनी को रन करने के लिए। उनकी कंपनी जैसे मेजर इंस्ट्रूमेंट की है, देन उन्होंने खुद अब पावर लेवल पे हाथ रखा है, तो उन्होंने मोटरोला की फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया है इंडिया में, और अभी उनको मोटरोला पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। तो ये एक जर्नी होता है कि भी कोई भी अमेरिकन, रशियन कंपनी या फिर जापानीज कंपनी जो कि टेक्निकल इंडिया में तभी, या फिर चाइनीज कंपनी हो इंडिया में तभी सर्वाइव कर सकती है जब कि उस कंपनी का जो इंडियन सीईओ हो, वो उसका बैकग्राउंड जो हो बीएससी हो, या आपका क्या कहते हैं इंजीनियरिंग का हो, इंजीनियर हो, तभी वो कंपनी सरवाइव कर सकती है। ये बात फैक्ट है, कुछ भी कर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2016 जब मुझे धोखा मिला, जब मैं पूरा टूट गया, वो भी कैसे, मेरे सीनियर ने मुझे फोन करके बताया कि भैया जिस प्रोडक्ट की बात तुम मुझे कर रहे थे, वो प्रोडक्ट कोई और निकाल रहा है। तो मैंने कोई और कैसे बोला कि जिस
जिस इनोवेशन तुम बात कर, जो तुम्हारा खुद का रिसर्च है, वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी निकाल लिया है। तो मैंने उस कंपनी के मैनेजर को कॉल करके पूछा कि मैनेजर भी इनफैक्ट BBA देन MBA फिर BCom या फिर MBA, ही आल्सो नॉट टेक्निकल, ही सेज भी नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि भैया देखा उस कंपनी ने उस फूड कंपनी CEO को हायर किया और मेरे प्रोडक्ट को ही उस जो जिस फूड रेडी कंपनी के CEO को हायर किया था, मेरे प्रोडक्ट को एक डब्बे में बंद करके दूसरे, मतलब कि इस 420 कंपनी ने जिसने मुझे चूना लगाया, इस 420 कंपनी के CEO को हायर किया जो कि खुद डूब रही थी। तो इन्होंने 10 डेज बैटरी बैकअप वाला, इस कंपनी ने दूसरे 10 डेज बैटरी बैकअप वाला मोबाइल निकाला, जो कि भैया एप्पल के बस की भी नहीं थी, नहीं मोटरोला ने भी ऐसी कोई R&D नहीं किया था भैया 10 डेज बैटरी बैकअप निकाले कि मोबाइल की। इवन सैमसंग ने भी ऐसा कोई प्रोडक्ट अप टिल 2016 सितंबर तक नहीं निकाला था। हुआ क्या कि मैं जब एक दिन उस कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, एक दिन मैं गया तो मेरे को गेट पे घुसने नहीं दिया गया। ये एक इनोवेटर की उन्होंने इतनी रद्दी औकात कर दी कि भैया तुम तो नहीं गेट के पानी जा सकते, गार्ड ने मना कर दिया मुझे। मेरे को फिर डाउट हुआ बिकॉज मैं उसके कुछ प्रीवियस नाइट मेरे सीनियर का कॉल आ चुका था एंड ही इज वार्न मी कि भैया जिस प्रोडक्ट में तुम बात कर रहे हो, कोई एक्स कंपनी उस प्रोडक्ट 10 डेज बैटरी बैकअप निकाल के दे रही है, जो कि आज तक एप्पल और मोटरोला के बस की नहीं थी। देन मैंने उस कंपनी को की जॉब को लात मार दी और फिर मैं घर के नियरली इंटरनेट कंपनी में ज्वाइन गए नियरली 8,000 रुपीज में, जो कि जिस इंजीनियर की कीमत नियरली 35K और 40K है, वो इंजीनियर 8,000 रुपीज में जॉब कर रहा है अपने घर को सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए। और उस कंपनी में संडेज तक का हॉलीडे नहीं होता था। कोई भी इंटरनेट कंपनी है और वो लोकल इंटरनेट कंपनी की मिस्टेक से जो लोग होम पे खोल लेते हैं, क्योंकि मुझे खुद होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, धोखा मिलने के बाद। और तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे ही मेरे हाथ से पैसा गया, मेरे हैंड से मनी गया, एक लड़की थी मेरी लाइफ में, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उनको सही सच्चाई बता दी कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है, ऐसा ऐसी गलत चीज हुई है, तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया। शी कट इट। देन आई थॉट यार, और उस टाइम मेरे छोटी माँ के सन जो है, उनका शादी था, आई थिंक मार्च की अप्रैल में उनका शादी था। मार्च की अगस्त की सितंबर में उनकी शादी था 2016 में ही। और उस टाइम मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा, किस बात के लिए कर रहा हूँ। वन डे मेरे को ऐसा लगता है इस देर से कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ, क्योंकि भैया पैसा गया तो लड़की भी गई, तो मैं सोचा सुसाइड कमिट कर लो, क्या फायदा है इसी लाइफ जीने का। आई टेल दिस द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। देन क्या हुआ कि इनफैक्ट वन डे मैं रोड पे जा रहा था और मेरे सामने से एक ट्रक आ रहा था, दिस इज मी, एंड ट्रक आ रहा था। मैं ऐसे वर्क के आफ्टर घर गया, मेरे को कुछ ध्यान नहीं था, मैं चला जा रहा कि मेरी यहाँ क्या औकात रह गई है, साला दिमाग खराब कि 8,000 जॉब करनी पड़ी, जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग बीच में रह के मुझे जॉब करनी पड़ रही है और उनकी मुझे सुननी पड़ती थी। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है,
वो साइड में खड़ा था और उसका एक और फ्रेंड, उसने मुझे बोला, मेरे मैं हैंड पकड़ मुझे स्नैच किया, मुझे साइड किया। बोले भाई तो क्या कर रहा है? ने क्या हुआ? तू अभी क्या कर रहे? तू तू तो मरने मरने जाना, क्या हो गया? तो मैंने फ्रेंड को सारी कंडीशन बताई, भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक कंपनी के बारे में, अ, कि भाई इंडिया में एक दिल्ली में एक कंपनी है, SDN स्पेस डेवलपमेंट नेक्सस द, तो उस कंपनी के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई यहीं पे पास में, तो ठीक है। मैं फिर SDNX में गया, लेकिन क्या हुआ कि जब मेरा प्रेम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो मैं 2-3 डेज अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया, PG में, 2 या फिर नहीं, बट यस 2-3 डेज के लिए। एंड मैंने बोला, उसने बोला कि भाई जब तक की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तो यहाँ से नहीं जाएगा, मेरे सीनियर के पास। और मेरे सीनियर ने बोला कि इनफैक्ट मेरा बीटेक पूरा हो गया है, तू मेरे से नोट्स ले ले, या फिर तेरे को फोटो कॉपी करा ले। तो मैं ठीक है, तो बोला कि मनी है, तो मैंने हाँ थोड़ा सा मनी है तो चलेगा। उसमें भी जो मैंने फोटो कॉपी कराया, नियरली 800 और 1000 रुपीज़ मेरे पास नहीं थे, तो मेरे सीनियर ने ही पे किए अपने नोट्स के। फिर मैं 2-3 डेज अपने सीनियर के यहाँ रहा। फिर उसके बाद मैंने SDNX सर्च किया गूगल पे, स्पेस डेवलपमेंट नेक्सस का। तो मैंने देखा कि भैया ये उनका मोबाइल नंबर देखा, देन मैंने उनका क्या कहते हैं उसे मैंने उनका एड्रेस देखा। जो मेरी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई, उन सर से मीट करने के बाद मेरे को अच्छी तरह याद है, वो सितंबर का डे था, और मतलब कि कोल्ड हॉट के बीच मिड का समय, नियर अबाउट 12 to 16 के बीच का डे था, 2016 था उस दिन टाइम। और मैं 10:30 PM की नीदर मैं उनके पास मिलने गया था। और वो पर्सनली कोई और नहीं, नन अदर देन एज ए स्पेस नेक्सस के फाउंडर डॉक्टर संजय राठी थे, हैं, जो कि बहुत अच्छे, बहुत काबिल और बहुत ही मजे हुए पर्सन। अब एक बात कह लो कि प्राय शहर में किसी की नहीं पड़ी रहती कि भैया पर्सन जी रहा है या मर रहा है, लेकिन ये आदमी इतने बढ़िया, ये आदमी इतने बढ़िया कि इनको लगा कि मेरे अंदर कुछ है। तो जैसे ही अब हुआ क्या कि इनफैक्ट मैं इनके ऑफिस के पास पहुंचा, 10:30 कि इनका ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, तो ऊपर घर है। ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है इनका, ऊपर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे घर है। तो ये मुझे रिसीव खुद पर्सनली करना है, और रात के 10:30-11 बजे मुझे कोई किसी प्राय पर्सन को रिसीव नहीं करता है। भैया हर को एक बात ध्यान रखना, ये मुझे रिसीव करना है। देन इनसे मैंने बात की, तो इन्होंने, और इनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से मेरे पर बस इतना फर्क है, डॉक्टर संजय राठी और मेरी स्टोरी। और के बोलते कि संजय राठी अपना डॉक्टर क्यों लगाते, इसके ये रीजन है क्योंकि ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है। क्योंकि डॉक्टर संजय राठी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इन गूगल प्लस के चीफ आर्किटेक्ट डिजाइनर हैं।
गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल प्लस। आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते होंगे। इसकी पूरी कोडिंग डॉक्टर राठी ने की है और उनकी टीम ने, इसलिए ही इज अ डॉक्टरेट इंजीनियर। गूगल ने उनको डॉक्टर दिया है। आज भी गूगल उनको बुलाती है लेकिन वो चाहते नहीं है कि, क्योंकि उनको अपनी नेशन के लिए कुछ करना है। इनफैक्ट तो उन्होंने मुझसे बात की, उनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं। जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मैं एक आईबी चीफ और एंड डीआरडीओ साइंटिस्ट का भाई हूँ, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने ये बोला, ब्रदर दिस इज नॉट द एंड, सन दिस इज नॉट द एंड। I saw the next Elon Musk inside you by showing your walk and talk. Then he motivates me. Then उसके बाद मेरा उनसे मीट करने के बाद आफ्टर मीट मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया 360 वे में। पूरा लाइफ चेंज हो गया। उनसे मैंने मीट किया। मीट करने के बाद मैंने कई लोगों की हेल्प की और मतलब कि इनफैक्ट मैं अपना इंजीनियरिंग भी आसानी से कंप्लीट कर लिया। भी होने वाला है। मेरा डिग्री के कुछ एग्जाम्स रह गए हैं, बट बिकॉज ऑफ कोर्ट केस वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि भैया कि अभी एग्जाम में फिल भी नहीं कर रहा, बट लेकिन करूँगा। हाँ इतना है कि आज मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि गेट के लिए एलिजिबल हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड का बात करने लिए अबाउट मैं 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, टीच करता हूँ। ये आज मेरी पावर है। एसेट फ्रॉम माई पेरेंट्स, एसेट फ्रॉम माई ब्रदर, दिस इज माई पावर। एंड द सेकेंड थिंग, जब मैं उनसे मिल के आया तो मैं अपने सारे एग्जाम्स फटाफट क्लियर करना शुरू कर दिया। मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट हुआ। देन मैंने डिग्री स्टार्ट किया। डिग्री भी मेरा कंप्लीट होने के कगार पे है। डिग्री में इतने सब्जेक्ट से क्लियर कर चुका हूँ और मैं डिग्री फर्स्ट डिवीजन से क्लियर हो रहा है। डिप्लोमा भी फर्स्ट डिवीजन से है और डिग्री भी मेरा फर्स्ट डिवीजन से क्लियर हो रहा है बिकॉज ऑफ डॉक्टर राठी एंड माई सीनियर। दिस अ मेन थिंग। हर कोई बोलता है कि भैया कि आप अपने आगे इनोवेटिव साइंटिस्ट क्यों लगा, तो मैं इस लेवल हूँ चाहे मेरी रिसर्च हो रही है, मेरी रिसर्च है। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज यहाँ पे मैं एक और पर्सन ने हेल्प की, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वो एक IITian है। जब मेरा प्रोडक्ट चोरी हुआ तो मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में एक इंजीनियर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मैंने उनका नाम पहले गूगल किया कि वो उनकी पहले मैंने फेसबुक आईडी स्टडी की। देन मैंने उनका नाम गूगल किया एंड पर्सन रियल निकली। तो कॉल हर सिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, मेरे प्रोडक्ट का पूरा वो मांगा। तो मैं तो एक बार मैं प्रोडक्ट भैया चोरी हो चुके तो मैं उन पर कैसे बिलीव बोला कुछ भी होता है, अगर थोड़ा कुछ मेरे थ्रू कुछ भी लॉस होता है, इस चैट का पूरा वो रख लो, आप स्क्रीनशॉट रख लो। मैं आपको इंडिया में अपने घर का एड्रेस देने को तैयार हूँ। और यहाँ पे अमेरिका में मैं इस पोस्ट पे हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। तो उन्होंने बिना कुछ से, और अगर आपको कुछ भी लॉस हो तो मैं उस लॉस का आपको 5 to 10 करोड़ रुपीज पे करने को तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। फिर मैंने उन पर टच करके ब्लूप्रिंट उनको भैया कि और वो पर्सन भी बहुत बड़ी रॉयल फैमिली की हैं और मैं उनका इसलिए नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने मेरा
खुद का प्रोडक्ट बिल गेट्स के सामने, तो बिल गेट्स ने एक ही बात कही, ठीक है मैं ये प्रोडक्ट